Hi everyone, this is CA Hardik Thakkar, and in this video we are going to understand the concept of capital gain and the taxation of capital gain as per Income Tax Act 1961. Okay, कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन जो है सेक्शन 48 ऑफ इनकम टैक्स, उसके हिसाब से कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है. लेट अस अंडरस्टैंड दैट एंड देन गो फर्दर. ओके, कैपिटल गेन मींस एनी प्रॉफिट और गेन दैट हैपेंस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट. ओके, profit or gain means if the transfer price or the selling price is more than the acquisition price, the difference is a gain, right? Transfer, यहां पर सिर्फ selling word use नहीं किया है, transfer word use किया, right? So transfer can happen through gifting, succession, inheritance, will. A lot of things are covered, okay, except apart from selling the capital asset. Okay, and capital asset अगर आपने ट्रांसफर किया है तो ही आपको capital gain tax का implication आ सकता है. That means if you give watch to someone or used cars, okay, then it cannot be considered as a capital asset, तो उस पे आपको capital gain नहीं लगेगा, right? तो कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है, कौन से असेट को ट्रांसफर करने पे आपको कैपिटल गेन लगेगा. लेट अस अंडरस्टैंड. कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड व्हिच इज हेल्ड बाय द असेसी. ओके, कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी जो एक असेसी होल्ड करता है वो कैपिटल असेट हो सकता है. तो इट इज अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन, बट ये डेफिनेशन में से उन्होंने दो चीजों को एक्सक्लूड कर दिया, व्हिच इज स्टॉक इन ट्रेड एंड यूज पर्सनल इफेक्ट. लेकिन फिर उन्होंने एक एक्सक्लूजन में से एक्सक्लूजन निकाले कि पर्सनल इफेक्ट में कौन सी चीजें नहीं आ सकती, राइट? पर्सनल चीजों में यू कैन नॉट कवर स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, ज्वेलरी एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट. मतलब ये चीजें अगर आप ऐसे क्लेम करते भी हो दैट यू आर यूजिंग इट फॉर योर पर्सनल पर्पस, फिर भी इनके ट्रांसफर करने पे आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, इवन इफ यू क्लेम दैट दे आर योर पर्सनल एसेट्स. Okay, how do you remember them? There is an abbreviation or an acronym for that, which is called SADPJ. Okay, sculptures, archaeological collection, drawings, paintings, jewelry, and then any other work of art. They will always keep one window open if they want to add anything else in future. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कैपिटल असेट का डेफिनेशन. कैपिटल गेन कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड्स? कैपिटल गेन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड अनदर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको कब होगा? व्हेन यू ट्रांसफर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट यू विल मेक अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस. ओके, व्हेन आई से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इट इंक्लूड्स लॉस. अगर आपकी एक्विजिशन कॉस्ट इज मोर देन योर ट्रांसफर प्राइस, then it can be a loss as well. So whenever I use the word gain, I automatically also mean losses if the equation is reversed. Okay, long term capital gain आपको कब होगा? When you transfer long term capital asset, you will have long term capital gain. अब ये asset short term है या long term है, वो decide कैसे होगा? It will be decided based on your period of holding. ठीक है, कुछ assets में period of holding 12% होगा for short term और long term, कुछ assets में 24 months, and in other miscellaneous assets it is going to be 36 months. Starting from previous year 24-25, अब 36 months वाला classification निकल चुका है, and now it is only 12 and 24. But for the academic year 23-24, you will have to remember 36 months as well. Okay? What is the taxability? अब ये कौन से asset का कौन सा category है, that you can look out. Okay, that I will put it in the comment कि कौन से asset में कौन सा वाला capital gain short term long term होता है according to the period of holding. I'm not covering that in the video right now. Okay, how is the taxability of the capital gain? Short term capital gain में अगर आप shares के sell पे capital gain कमाते हो short term, then you will have to pay a flat rate of 15%. Okay, if you have short term capital gain of any other asset other than shares, मतलब gold बेच के आपने पैसा कमा लिया, right? या फिर ऐसी कोई चीज अगर आपने bond sell करके अगर आपने पैसा कमा दिया, तो then that short term capital gain will be added to your income. और आप बाद में उसके ऊपर जो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है, आप उसके हिसाब से टैक्स पे करोगे, राइट? बट देयर इज नो स्पेशल रेट, राइट? देयर आर सम असेट्स लाइक शेयर्स व्हिच आर टैक्स्ड एट अ स्पेशल रेट. ओके, 111A, 112A एंड ऑल दोस थिंग्स. सेक्शन याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखो, राइट? When you are talking about long term capital gain on sale of shares, it is going to be 10% without any inflation adjustment. Okay, लेकिन यहां पर आपको 1 लाख रुपीस तक का एग्जेम्पशन मिलेगा. That means your long term capital gain up to 1 lakh rupees is exempt and anything in excess of that is taxable. ये जो 1 lakh rupees वाली लिमिट है, that is now increased to 1.25 lakh rupees, but again that is applicable in the that was announced in the recent budget, which means it is applicable from previous year 24-25 onwards. But this video is for academic year 23-24, which means अभी भी 1 lakh rupees तक का
exemption ही applicable है. Also in the recent budget, okay, the rate of long-term capital gain tax is now increased to 12.5%, but that is from 24-25 onwards. आपको याद रखना है 10%, okay, if you are going to give semester exams in the October month. And if you have long-term capital gain on anything other than shares, तो आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड उसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन यानी इन्फ्लेशन का बेनिफिट भी मिलेगा. ओके, हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन, व्हाट इज द फॉर्मेट? फर्स्ट लेट अस लुक एट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. सेल कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर यानी ब्रोकरेज या ऐसा कुछ, तो आप लेस करोगे. देन यू विल हैव नेट सेल कंसिडरेशन. उसमें से आप दो चीजें लेस करोगे. ओके, एक होगा आपका COA यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ओके, जिस वैल्यू पे आपने असेट को अक्वायर किया था वो आप लेस करोगे. देन अगर आपने वो असेट को सेल करने से पहले उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट कॉस्ट इनकर किया था तो वो भी आप लेस करोगे. And after reducing these two terms, the amount that you get will either be a short-term capital gain or a short-term capital loss, right? Now, long-term is where the catch is. If the gain is a long-term capital gain, आप सीधा cost of acquisition या सीधा cost of improvement आप minus नहीं करोगे. You will give the benefit of indexation. That means cost that you have incurred 20 years back will be adjusted with the inflation, and you will arrive at the current cost of the expense that you incurred maybe 10, 15 or 20 years back. तो इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद आपकी जो कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट को आप क्या करोगे, उस कॉस्ट को आप लेस करोगे फ्रॉम द सेलिंग कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन, एंड फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस आएगा. ओके, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज फॉर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑल्सो. तो एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट दोनों अगर आपने लॉन्ग टर्म में इनकर करके आपने ट्रांसफर किया है तो यू विल अप्लाई द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन. And that indexation is nothing but adjustment of cost with inflation to arrive at the current cost of your expenses that you incurred few years back, okay, or maybe a couple of decades back. ठीक है, तो indexation और indexation में acquisition और improvement दोनों हम consider करेंगे. okay, after that you will get long term capital gain or long term capital loss. अगर आपको long term capital gain पे tax pay नहीं करना है, one of the way which I am covering here, there are multiple ways to save taxes long-term capital gain, but one of the most important that I'm covering here is investment in a residential house property. अगर आप आपके कैपिटल गेन का पैसा किसी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हो तो उतना आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा. अगर आपने पूरा कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है, by what duration you can buy this residential house property, or you can construct it also. You can do that 1 year prior to the date of transfer of your asset or 2 years after the transfer of your capital asset. मतलब 1 year prior और within 2 years of transfer, ये ड्यूरेशन में अगर आप एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेव कर सकते हो. ठीक है, यू कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स आल्सो ऑफ NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, बट द मैक्सिमम अमाउंट of that deduction is 50 lakh rupees under 54 EC, and the duration of investment is within 6 months of the capital gain. Okay, अभी सर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है वो तो आपने बता दिया, लेकिन इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते कैसे है, फॉर्मूला क्या है? ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लेशन इंडेक्स. ये इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको ऑलरेडी एग्जाम में और रियल लाइफ में गूगल सर्च पे भी आपको मिल जाएगा, आपके एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स में भी मिल जाएगा, and in your exams also CII का data will always be available and given in the question. okay, तो cost of inflation index of year of transfer को आप न्यूमरेटर में लिखोगे, तो जिस साल में आप ट्रांसफर करोगे उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स न्यूमरेटर, एंड जिस साल आपने अक्वायर किया था उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स विल बी इन द डिनोमिनेटर. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2001-2 ईयर में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी फॉर 20 लाख रुपीस, ओके, फॉर 20 लाख रुपीस जो आपने ट्रांसफर कर दी है इन द ईयर 23-24, तो इसका मतलब अगर 2001-2002 में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 20 लाख रुपीस में खरीदी थी तो उसकी इक्विवेलेंट कॉस्ट 2023-24 में कितनी होगी, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा इन्फ्लेशन इंडेक्स. और CII में टेबल में अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला लगाने के हिसाब से 20 लाख रुपीस विच इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, 23-24 का इन्फ्लेशन इंडेक्स इज 348. अब ये डिराइव कैसे होता है इसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. The table is already given, the numbers are already decided, you just need to know the application of this. Okay, so 348 is numerator which is inflation index of year of transfer,
divided by inflation index of year of acquisition. तो 2001 2002 which also happens to be the base year. Okay, तो उसका inflation index is 100. तो अगर हमने इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया, माई अमाउंट इज कमिंग टू 69,60,000 रुपीज. इसका मतलब जो कॉस्ट 20 लाख रुपीज थी इन द ईयर 2001-2002, दैट इज इक्विवेलेंट टू 69,60,000 इन द ईयर 23-24. और ये अमाउंट आप सेल कंसिडरेशन में से माइनस करोगे टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन. ठीक है. Now, what about index cost of improvement? Apply the same logic. 2015-16 में कोई improvement cost incur किया था, 2023-24 में ट्रांसफर कर दिया. ओके, 5 लाख रुपीज incurred in 15-16, तो उसका multiply by CII of 23-24, the year in which property is transferred, and inflation index of 15-16, the year in which improvement cost was incurred. तो इसका index cost of improvement is 685,039, and this will be reduced from net sale कंसिडरेशन. अगर फॉर्मूला भूल जाते हो और ऊपर नीचे अप्लाई कर देते हो, इफ यू रिवर्स द फॉर्मूला, योर आंसर विल बी लेसर देन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट, एंड देन यू विल नो कि आपने फॉर्मूला उल्टा अप्लाई किया है, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंप्रूवमेंट हमेशा आपके ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंप्रूवमेंट से ज्यादा अमाउंट आना चाहिए. ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर कि अगर आंसर कम आ जाता है, दैट मींस आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्वैप कर दिया है. So you can again rectify your mistake and find out the correct answer. Okay. Now, what are the most important points that you need to consider here? अगर आपने कोई प्रॉपर्टी अक्वायर नहीं की है, अगर आपको वो गिफ्ट में मिली है, सक्सेशन या इनहेरिटेंस में मिली है, तो सर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो जीरो है. तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में वी विल कंसिडर कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर. आपको जिनके पास से गिफ्ट मिला है या विल या सक्सेशन में मिला है, उनकी जो कॉस्ट थी, दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. सर अगर उनको भी इनहेरिटेंस में मिली थी तो उनके जो प्रीवियस ओनर थे, उनका जो कॉस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली आपके प्रीवियस ओनर का कॉस्ट बनेगा, और आपके प्रीवियस ओनर का कॉस्ट आपका कॉस्ट बनेगा. राइट. इफ प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, अगर 1/4/2001 के बाद एक्वायर किया तो इन्फ्लेशन इंडेक्स इज अवेलेबल, लेकिन उसके पहले इनकर किया है तो इन्फ्लेशन इंडेक्स अवेलेबल नहीं है. तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम इन्फ्लेशन इंडेक्स तो 1/4/2001 से ही लेंगे, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए वी विल हैव अ चॉइस that we will take original cost of acquisition or the fair market value as on 1/4/2001. तो अगर FMV हायर है तो उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो उन दोनों में से जो हायर वाला अमाउंट होगा वो आप कंसिडर करोगे, बिकॉज दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर दी असेसी, क्योंकि जितना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा होगा उतना गेन कम आएगा एंड उतना आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा. वेरी क्लियर विद दिस. एंड लास्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर आपने कोई 1/4/2001 से पहले इनकर की है तो उसको आप कंसिडर नहीं करोगे, बिकॉज व्हेन यू आर कंसिडरिंग एफएमवी एज ऑन 1/4/2001, उसमें ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट की वजह से होने वाला जो बेनिफिट है, इट इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड एंड देयरफॉर यू डोंट नीड टू कंसिडर इट सेपरेटली. Okay, so this is about the summary of capital gain. I hope it was very clear to everyone. Thank you so much for your time and attention. I will see you in the next video. Bye bye.